classes especially for lockdown special educational videos. Students, today I am going to teach chemistry of class 9th chapter 1, the matter in our surrounding, part 4. Students, latent heat of vaporization. When a matter in its liquid form is heated continuously and when reaches to its boiling point, the temperature do not increase till all the liquids change into its gaseous state, and during this the supplied heat is called the latent heat of vaporization. Students, the process of changing of state of a matter from solid to liquid is called melting or fusion, and the process of changing of state of a matter from liquid to gas at its boiling point is said to be vaporization, but the same below its boiling point is called evaporation, and from liquid to solid is known as solidification, and from gas to liquid is known as condensation. It is noticeable that some matters like camphor, ammonium chloride and iodine etc. change directly from solid to gas state and from gas state to solid state without being in liquid state. The both processes are called sublimation and deposition. The distance between the constituent particles of different matter is different, and as a result matters are found in all the three states, and this distance space between the particles can be increased by decreasing the pressure and also can be decreased by increasing the pressure. For example, applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. Dry ice, the solid form of carbon dioxide, is directly converted from gaseous state CO2 by applying high pressure and is kept under high pressure, and again this solid carbon dioxide or dry ice can be converted into gas state by decreasing the pressure to 1 atmosphere. Students, ये pressure of 1 atmosphere is equal to the 1.01 into 10 power 5 Pascal. Students, सी बेड समुद्र के तट पर जो एयर प्रेशर होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जो 1.01 into 10 power 5 प्रेशर के पास्कल के बराबर होता है. एंड नाउ वी विल नो द 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द evaporation. They are number 1 surface area, number 2 wind speed, number 3 temperature and number 4 humidity. The first three, surface area, wind speed and temperature, are directly proportional to the rate of evaporation, while the fourth factor, humidity is inversely proportional to the rate of evaporation. Students, some students used to think that I used to write on whiteboard before I start teaching. This means, do not you know the reason
behind it. Students, before lockdown, classes were running smoothly and all of you were made notes from your schools. But nowadays, no teacher can provide you sufficient notes for making her learning purpose. That is why I used to write the contents before I explained. तो स्टूडेंट्स, जो मैं पहले लिख देता हूँ इसका रीज़न केवल यही है कि मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन शायद लंबे समय तक जाए। ऐसे में हमें स्कूलों के खुलने का बहुत ही कम उम्मीद है। इसी कारण से मैं कंटेंट्स को अच्छी राइटिंग में पहले ही लिख देता हूँ, जिससे आप अपना नोट्स इसे देखकर बना सकें। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं इसे देखकर नहीं पढ़ाता आपको। यू कैन इमेजिन व्हाइल आई टीच यू। ओके, तो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड यू कैन मेक योर नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ written contents, written articles on my whiteboard by pausing the video at this stage. Now students, I am going to start for my topics. Students, first topic is latent heat of vaporization. तो students, आपने देखा होगा वाटर को आफ्टर सम टाइम अगर हीट प्रोवाइड किया जाए तो वाटर बॉयल होने लगता है, उबाल आने लगता है। स्टूडेंट्स, जिस समय वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा उस समय वाटर की टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम तब भी उस बेसल को हीट एनर्जी सप्लाई करते रहें जिस बेसल में वाटर रखा गया है, तो हम पाते हैं हीट कंटिन्यू देने के बाद भी टेम्परेचर 100 पे कांस्टेंट हो जाता है, 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, जबकि हम लगातार कंटिन्यू हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। आखिर यह हीट कहाँ चला जाता है? यह हीट छिप जाता है और छिपे हुए को हम हिडन बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में छिपे हुए को हम लेटेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस समय 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद पूरा वाटर वेपर में अर्थात गैसियस स्टेट में चेंज होने तक बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उस समय तक हम जितना भी हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वह सारा हीट एनर्जी लेटेंट हीट कहलाती है। लेकिन अब की बार पर्पज क्या है? क्या पार्टिकल्स ब्रेक हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं या नहीं? तो मैंने बताया था कि जब मेल्ट हुए तभी वो फ्यूज हो गए। उस समय हमने कहा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड एट दिस टाइम, इस टाइम मैं कहूँगा कि अब जो वाटर के पार्टिकल्स थे अब वे बल्क के रूप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होने के लिए इस सप्लाइड हीट को कंटिन्यू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस कारण से हमें टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट नोटिस नहीं होता और यह सप्लाइड हीट एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रोसेस को बताएंगे। स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ ये मैटर इनटू लिक्विड स्टेट। जब यानी जिस प्रक्रिया में कोई सॉलिड मैटर लिक्विड स्टेट में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग या
फ्यूजन, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन, एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ ए मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। स्टूडेंट्स देखिए, लिक्विड से गैस में दो प्रोसेस होते हैं, इवापोरेशन और वेपराइजेशन। तो स्टूडेंट्स जब कोई मैटर अपने लिक्विड स्टेट से अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। और जब अपनी बॉइलिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर पर वह गैस स्टेट में चेंज होता है लिक्विड स्टेट से, तो वह प्रोसेस हमारा वेपराइजेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ सकते हो, सड़क के किनारे गड्ढों में भरा हुआ पानी जो सन की हीट एनर्जी से सूख जाती है, धूप लगने पर सूख जाती है, या फर्श पर गिरा हुआ पानी हवा से सूख जाता है, तो यहाँ पर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम होती है और यह प्रोसेस हमारी इवापोरेशन कहलाती है। तो जो इवापोरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, इवापोरेशन हमेशा होने वाली प्रक्रिया है या हमेशा होती रहती है। इवापोरेशन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड अपनी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर चेंज हो जाता है गैस स्टेट में। जबकि अगर वाटर 100 को हम उबालते हैं, गर्म करते हैं, ये उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, तब ये भाप बनता है, तब यह गैस स्टेट में चेंज होता है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। इसमें समझ गए हो गया। सेम वे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ ए मैटर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। स्टूडेंट्स वह प्रोसेस जिसमें कोई मैटर अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। तो यह फ्रीजिंग भी कहा जाता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर इज ये प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। और स्टूडेंट्स आगे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ ए मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। स्टूडेंट और अगर वाटर वेपर है तो वाटर वेपर हमारा गैस स्टेट में है, अगर इसे हम लिक्विड स्टेट में फिर से प्राप्त करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ठंडा जरूर पीते होंगे। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आप ठंडा नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, लेकिन प्रीवियस डेज को रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, जब आप ठंडा का बोतल फ्रिज से निकाल कर लाते थे और बिना ढक्कन खोले हुए आप मेज पर रख देते थे तो बोतल के सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर होने लगते थे। स्टूडेंट्स क्यों? बिकॉज वाटर वेपर इज मिक्स्ड विथ एटमॉस्फेरिक एयर। तो स्टूडेंट हवा में क्या होता है? हवा में हमारा वाटर वेपर होता है जो कूल सरफेस, कोल्ड जो ठंडा पीते थे कोल्ड ड्रिंक की बोतल का सरफेस कूल होने के कारण जब हवा बोतल से टकराती थी तो उसमें मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में अपीयर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यह बहुत ही नोटिसेबल है कि कुछ मैटर्स जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और स्टूडेंट्स मैं बताऊं उसका क्या बोलते हैं जिसे आप लोग कपड़े में रखते हैं, याद है? उसे हिंदी में बोलते हैं फुनेन की गोली, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम भी मैं आपको बता दूं होता है, हमने लिख रखा है
आप देखते होंगे कपड़े में रखने के बाद जब 1 साल बाद मम्मा बॉक्स को खोलती हैं तो वो फुनेन की गोली गायब हो चुकी होती है, सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ मैटर सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं और द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ ए मैटर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट बीइंग पास्ड थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ ए मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट विदाउट बीइंग पास्ड थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो स्टूडेंट्स कपूर को जलाते हैं तो सीधे गैस बन जाती है, यह प्रोसेस सब्लिमेशन है। और अगर हम कपूर को जलाने के बाद एक ग्लास जार के कैप में कार्टन को लगाकर क्लोज कर लें, यह प्रोसेस हमारा डिपोजिशन कहलाएगा और फिर हमें सॉलिड कपूर प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं आपसे। स्टूडेंट्स हमने देखा था कि मैटर्स जो है वो हमारे वेरी टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं और इन पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। स्टूडेंट्स यह स्पेस किसी मैटर में कम होता है, किसी मैटर में ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स जब कोई मैटर अपने सॉलिड स्टेट में होता है तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, वे कैसे होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब कोई मैटर अपने लिक्विड स्टेट में होता है तो वे टाइटली पैक ना हो करके यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज हो जाता है और उनके बीच की डिस्टेंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती बढ़ जाती है। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें गैस स्टेट में तो जब मैटर गैस स्टेट में होता है तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, हमने पहले भी बताया था द स्टेट ऑफ ए मैटर कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग टू फैक्टर्स, दे आर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर के बारे में हमने पहले पढ़ लिया। अगर हम टेम्परेचर बर्फ को गर्म करते हैं अर्थात टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाते रहें तो लिक्विड से गैस बनता है। और अगर फिर हम टेम्परेचर को कम करें तो फिर गैस से मैटर आ जाता है अपने लिक्विड स्टेट में, और फिर अगर हम टेम्परेचर को कम करते रहें तो फिर लिक्विड स्टेट से आ जाता है सॉलिड स्टेट में। और ये स्टेट चेंजिंग में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हमने नेम भी डिफरेंट दिया। अब हम बात कर लेंगे हाउ डज प्रेशर अफेक्ट्स द स्टेट ऑफ चेंजिंग ऑफ ए मैटर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्या प्रेशर भी कोई इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा, सुना तो बहुत दूर, पहले घर की बात कर लें जिस पे आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, सिलेंडर में आपके जो गैस भरा होता है, या वो तो आप नहीं देख सकते क्योंकि सिलेंडर हमारे मेटेलिक होते हैं और मेटल के अंदर दिखाई नहीं देता, लेकिन आपने लाइटर जरूर देखा होगा। तो लाइटर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर जिस डिवाइस से आप लाइटर में गैस भरते हैं अगर उस डिवाइस के वाल्व को थोड़ा सा प्रेस करें तो जो निकलता है वह गैसियस फॉर्म में होता है, अर्थात वो गैस है। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इसको प्रेशर के साथ प्रेशर के साथ लाइटर में फिल करते हैं तो लाइटर में कुछ लाइटर्स हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं और हमें लिक्विड के रूप में अंदर दिखाई देते हैं।
अर्थात प्रेशर देने से अर्थात प्रेशर बढ़ाने से स्टूडेंट्स अगर कोई मैटर अपने गैसियस स्टेट में है और उसको हाई प्रेशर दिया जाए, अत्यधिक कंप्रेस किया जाए, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना पार्टिकल्स के बीच, ये बहुत कम हो जाती है। और जब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो आप जानते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और तब मैटर चेंज होता है लिक्विड तो गैस से लिक्विड में। और अगर फिर हम यही और प्रेशर बढ़ाते रहें तो फिर लिक्विड से चेंज हो जाता है डायरेक्टली सॉलिड में। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा ही एग्जांपल हम आपके लिए लाए हैं, ड्राई आइस। स्टूडेंट्स ड्राई आइस कोई शुष्क बर्फ नहीं होता, कोई सूखा बर्फ नहीं होता, लेकिन जो फिल्मों में या कुछ धार्मिक टेलीविजन के सीरियल में हम देखते हैं स्वर्गलोक में जो धुआं उड़ता हुआ, या कभी आपने देखा होगा कि जादूगर को गिलास से नीचे धुआं गिराता हुआ। स्टूडेंट्स वो कोई गैस नहीं होता, वो यही आपका ये हमारा ड्राई आइस होता है। स्टूडेंट्स तो ड्राई आइस कैसे प्राप्त करते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड को अत्यधिक लो टेम्परेचर अत्यधिक कम टेम्परेचर करके और कंप्रेस किया जाता है तो यह बिना ये लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में। स्टूडेंट्स जिसे हम ड्राई आइस के रूप में जानते हैं, और यही ड्राई आइस स्टूडेंट्स ये ड्राई आइस इतना कूल होता है, कभी आपने अपने हाथ पर नेचुरल आइस बर्फ को रखा है? बर्फ का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ड्राई आइस का तापमान माइनस में होता है। तो स्टूडेंट्स कभी भी इससे खेलने की कोशिश ना कीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है ड्राई आइस। स्टूडेंट्स ड्राई आइस को हम अपने कॉटन के गमछे में भी रख सकते हैं। ड्राई आइस इतना ठंडा होता है कि गलती से इसे खा ना लीजिएगा, अदरवाइज आपकी ब्लड जो खून हमारे शरीर में है ये जम जाएगा और हमारी ब्रीथिंग रुक जाएगी। ये हमारी डेथ बन सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। तो कभी भी इससे खेलने की कोशिश ना कीजिएगा। जब भी प्रैक्टिकल कीजिएगा तो टीचर के असिस्टेंट में कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये ड्राई आइस हम कैसे प्राप्त करते हैं? हम टेम्परेचर को बहुत ही कम कर देते हैं और फिर हाई प्रेशर डालते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिना लिक्विफाई हुए सीधे सॉलिड के रूप में चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स और आप ये चौंक जाओगे, इस ड्राई आइस को आप कॉटन के गमछे में बांध सकते हो और ये कितना ठंडा होता है इसका अनुमान आप लगा सकते हो जब आप अपने हाथ में 5 मिनट से ज़्यादा नेचुरल बर्फ नहीं रख सकते, जो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जिसका तापमान होता है। फिर आप ड्राई आइस को अपने हाथ में कैसे रख पाओगे? कभी भी इसे आजमाइएगा नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे कुछ और टॉपिक्स को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं, हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कोई मैटर अपनी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होता है तो यह प्रोसेस हमारा जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस बनता है। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, मैं पानी की बात करूं वाटर की, तो अगर 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर वाटर चेंजेज फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट से चेंज होता है गैस स्टेट में, तो यह क्या कहलाएगा? इवापोरेशन। क्या कहलाता है?
वाष्पीकरण, इवापोरेशन। और अगर कोई लिक्विड, एग्जाम्पल के लिए वाटर, अपनी बॉइलिंग पॉइंट अर्थात वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर चेंज होता है लिक्विड से गैस स्टेट में, तो यह प्रोसेस हमारी वेपराइजेशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इवापोरेशन सतत चलने वाली, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हम उन 4 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इवापोरेशन को प्रभावित करते हैं, जो इवापोरेशन को अफेक्टेड करते हैं। वे कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? नंबर 1, सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, जितने सरफेस पर वाटर फैला हुआ है उसका एरिया क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। नंबर 2 है आपका विंड स्पीड, यानी वायु की गति, हवा की गति। और थर्ड है हमारा टेम्परेचर। अब फोर्थ है ह्यूमिडिटी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे फर्स्ट सरफेस एरिया, विंड स्पीड और टेम्परेचर हैं, ये तीनों तो फ्रेंड हैं हमारे इवापोरेशन के, दोस्त हैं। और एक दोस्त जब बढ़ता है तो दूसरा दोस्त भी बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन सरफेस एरिया इज लार्जर द रेट ऑफ इवापोरेशन इज फास्टर। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इवापोरेशन तेज होगा, अगर विंड स्पीड तेज होगी इवापोरेशन तेज होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन फास्टर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जो हमारा फोर्थ फैक्टर है ह्यूमिडिटी, अगर ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये दुश्मन है, अब अगर दुश्मन बढ़ता है तो हमें हराता ही है। तो ह्यूमिडिटी हमारे इवापोरेशन का दुश्मन है। तो स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ हम अपने वीडियो का पार्ट 4 फिनिश करते हैं। रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, कीप ऑन वॉचिंग माय आकांक्षा क्लासेस। थैंक यू।